Good morning, friends. Sir, good evening. Good evening. Welcome to this webinar. After very long time, sir. After a long time, no, Eagerly waiting no, for this. no stress, no Yes, stress. yes, sir. तो वेबिनार की शुरुआत मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है? Yes, sir. मेरी वीडियो और ऑडियो अगर क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स सी। बढ़िया है। तो वेबिनार की शुरुआत करने के पहले बेसिकली स्ट्रेस, इस वेबिनार में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, स्ट्रेस अच्छी है कि बुरी है, किस तरीके से हम लोग स्ट्रेस को बदल सकते। उसके पहले हम लोगों को ये जानना कि हम कौन है, ये इम्पोर्टेंट। मैं ये स्ट्रेस का क्रिएशन जो बनाया है, आप मेरे से क्यों सुने, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपनी मेडिकल लाइन, उसके लिए ऊपर एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन बनाया है। वो आप जो है सुने, फिर अपन आगे चलते हैं। तो और जब तक चैट बॉक्स में आप लोग भी लिखें कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। डॉक्टर मनोज ठाकुर जी कहाँ से हैं? इंट्रोडक्शन शुरू। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well.
Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. Thank you. This is my introduction. As I have told you, ये सिर्फ इसलिए है कि जस्ट टू नो, एक लाइन में ये बताऊंगा कि मैं डॉक्टर एसपी साहनी हूँ, ईएनटी सर्जन हूँ और लाइफ कोच भी हूँ। ईएनटी सर्जरी मेरा प्रोडक्शन है, ऑपरेशन करता हूँ और उससे पैसे लेता हूँ, वो मेरा प्रोडक्शन है, ये मेरा क्रिएशन है। इसमें मैं जो हूँ बनाने में ही आनंद लेता हूँ और आप लोगों के साथ जुड़ने में ही आनंद लेता हूँ। आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ तो और अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि मैं करता तो अपने प्रैक्टिस के लिए हूँ, आप लोग भी जुड़कर लाभ उठाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि ईएनटी सर्जन होने के नाते हमारी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर, फोबिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें बढ़ती जा, पर फिर भी लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पे चल। एक कहानी से अपने वेबिनार की शुरुआत। दो बेकारी आमने सामने भीख मांगते थे, एक हंस के और एक रो के। 2-3 साल बीत गए, दोनों एक दूसरे को देखते थे, दोनों का बिजनेस ठीक था, शाम को हंसते खेलते दोनों जाते थे। एक दिन जो खुश होके भीख मांगता था, उसने कहा कि यार दोनों का बिजनेस बराबर है, कोई कंपटीशन नहीं है, पर मैं हंस के मांगता हूं और तू ये करके मांगता है, क्या चक्कर है? वो थोड़ा सा खिसका और उसने नीचे दिखाया कि उसको एक कील चुभ रही थी। वो कहता तुझे क्या मालूम, मुझे इस कील की बहुत पीड़ा होती है, इसलिए मैं रो के भीख मांगता। तो दूसरा दोस्त बोला कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा खिसक जाओ। उसने कहा अभी इतनी नहीं चुभ रही कि मैं खिसक जाऊं। दोस्तों, हम लोगों का भी यही हाल है। जब आप पूरी आज का वेबिनार 20-25 मिनट का जब सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आप लोग भी एंजाइटी लेने को तैयार हैं, स्ट्रेस लेने को तैयार हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स लेने को तैयार हैं, हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, इसमें करने को तैयार हैं, पर हटने को तैयार नहीं है। जब तक हटने को तैयार नहीं है, जब तक कि आदमी वेंटिलेटर तक नहीं पहुंच जाता। देखिए, इस वेबिनार से आपका अंधकार का दिया जलेगा, हटेगा और उजाला जागेगा और आपको अपने रूटीन में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, जब ही जाके ये चीजें हट सकती हैं। जैसे उपनिषद, सबसे पहला जो अपने यहाँ का ग्रंथ है वो वेद है और उसी का रस एसेंस जो है उपनिषद है। उन सब में जो वर्णन किया है, साइंस ने भी जो वर्णन किया है क्वांटम फिजिक्स से, ये प्रूव हो चुका है साइंस द्वारा। अपने उपनिषद ने तो पहले लिखा था कि पूरा ब्रह्मांड जिसके हम एक पार्ट है, सब त्रिगुणी, 3 गुणी है, 3 गुणी। साइंस कहती है उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। गीता कहती है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये सब हमारे अंदर है। मित्रों, जैसे दूसरे रूप से समझाता हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन है
न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये बैलेंस जब रहते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में चलते रहते हैं, तो आदमी की लाइफ भी बैलेंस रहती है और स्ट्रेस फ्री रहती है। ऐसे ही सतोगुण दोनों को बैलेंस करता है और विष्णु हमारी लाइफ को बैलेंस करता है। जैसे कार में एक्सीलेटर है, ब्रेक है, पर ड्राइवर नहीं है तो कार चलाने में क्या क्या चलेगी। ड्राइवर का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर जो है सतोगुण है, इलेक्ट्रॉन है, और विष्णु भी जो है ड्राइवर है, जो अपनी लाइफ को बैलेंस करता है। हमारी बॉडी भी त्रिगुणी है। जो लोग कुंभ हो आए हैं, जो लोग कुंभ जा रहे हैं, उनके साथ मेरी उनको बधाई है। पर मैं कई लोगों से पूछता हूं कुंभ जाने के बाद कुछ लाभ हुआ, तो कहते फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, ये शरीर में खुजली होने लगी, पेट में लूज मोशन लग गए। वास्तविकता ये है मेरे मित्रों, ये कुंभ 76% जो अपनी बॉडी है वो वाटर से बनी हुई है। पूरा सागर, पूरी गंगा हमारे अंदर बह रही है। जैसे गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों के संगम में हम कुंभ का स्नान करते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर गंगा और जमुना तो हमको दिख रही है। मतलब ये फिजिकल बॉडी, अंदर जिससे मैं बोल रहा हूं, आंखें बंद करें तो आपके मन में विचार आने लग जाते हैं, जिसको हम माइंड कहते हैं, वो है यमुना। और तीसरी नदी जो कि संगम में भी नहीं दिखती है, सरस्वती, वो नदी है प्योर कॉन्शियसनेस। वो हम लोगों को भी नहीं दिखती है। वो दिखने के लिए आपका मन, माइंड को काम और पीस होना पड़ता है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, स्ट्रेस जो है हमारे माइंड में ही होती है। माइंड मतलब एक ऐसी चीज है, ये और तो कुछ नहीं है। माइंड का मतलब ये होता है, ये तो आप सहमत होंगे कि स्ट्रेस का ओरिजिनेशन कहाँ होता है? माइंड में होता है, ब्रेन में होता है, कि हैंड में होता है? राइट इन द चैट बॉक्स। माइंड में। ओके, मधु बहन ने बोला है कि जो है कि माइंड में होता है, बिल्कुल सही है। शास्त्रों में, उपनिषदों में, केन उपनिषद में और डिफरेंट डिफरेंट जितने भी उपनिषद हैं, उन सब में माइंड की परिभाषा यही यही दी गई है कि माइंड एक क्या है, कि पावर ऑफ एनर्जी है। ऐसा एनर्जेटिक कैमरा है जो अपनी एनर्जी से हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल करता है। और माइंड की जो प्रवृत्ति है वो जो है रुकने वाली नहीं है। जैसे हवा का भाव, आपसे मैं बोलूं कि रोक लो तो क्या रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। ऐसे ही माइंड क्या भाव होता है, वो चलता रहता है, कभी इधर है कभी उधर है, बहकाता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। स्थिर रहना माइंड का काम नहीं है। तो उस पे स्थिरता लाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए परमात्मा ने या डिवाइन फ्रैगमेंट ने अपने को बुद्धि दी है। और बुद्धि की खुराक क्या है? नॉलेज, जो आपको आज मिलने जा रही है। एक बार फिर रिपीट करेंगे, पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी है। हमारी बॉडी जिसमें से मैं बोल रहा हूं, मेरे हाथ हैं, ये मेरा शरीर है, और इसके अंदर जो है एनर्जी है। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस क्या है? सरस्वती है। उसको समझने के लिए मैं डिफरेंट वे से चलता हूं। अगर आदमी का हाथ कट जाए तो आदमी जिंदा रहेगा कि नहीं? राइट? यस कि नो?
राइट, यस कि नो? आंख, यस। अगर आदमी की आंखें चली जाएं वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? राइट, यस, नो? यस। हम लोग तो डॉक्टर हैं, देखते हैं लोग कोमा में भी चले जाते हैं, ब्रेन भी उनका जो है, माइंड भी उनका जो है डेड हो सो चला जाता है, तो भी वो जिंदा होते। जो जो चीजों के बिना, जैसे स्वेटर है, चश्मा है, हाथ का मेरा ब्रेसलेट है, आंखें हैं, कान हैं, ब्रेन है, इन सब के जाने के बाद भी मैं जिंदा रहता, ये मैं नहीं हूं। वो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं था, वो मेरी आइडेंटिटी थी। मैं वो हूं जिसके जाने के बाद मेरा नाम, मेरी शान, मेरी आवाज बदल जाती है और मैं बॉडी बन जाती हूं। उसी को प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसी को डिवाइन फ्रैगमेंट बोलते हैं, उसी को डिवाइन फ्रैगमेंट बोलते हैं। मित्रों, जिस चीज के बिना आप रह सकते हो वो आप नहीं है। जैसे आंखें नहीं है तो भी आदमी जिंदा है, कान नहीं है तो भी आदमी जिंदा है, आदमी का ब्रेन कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो गया तो भी आदमी जिंदा है। पर जब कोई ऐसी चीज निकल जाती है जिससे आदमी का वेट भी कम नहीं होता, वही डिवाइन फ्रैगमेंट है, जिसी को प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। वही परमात्मा है, वही अल्लाह है, वही ईसा मसीह है, जिसका नाम हम लेते हैं, वही स्पेस है, वही शिव है। तो दोस्तों, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि माइंड में स्ट्रेस होती है, माइंड को बुद्धि कंट्रोल करती है, और माइंड के पीछे जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, स्पेस चल रहा है, उसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं करता। तो जो भी हमको काम करना है, अपने माइंड के ऊपर काम करना है। अगर आपने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया बुद्धि के थ्रू, ये गीता में भी लिखा है कि आप जो है अपने शरीर को रथ समझें, और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो जो है आपका डिवाइन फ्रैगमेंट है, और जो मन है वो रस्सियों के जो रस्सियां हैं, उन जो घोड़ों को चला रही हैं, उनके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। और अगर आपने कृष्ण को, मतलब अंदर जो डिवाइन फ्रैगमेंट है, उसको अपना सारथी बना के रखा, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगी, कोई एंजाइटी नहीं होगी, कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर नहीं। तो अगर इतना क्लियर हो गया है कि मैं कौन हूं, मैं एक डिवाइन फ्रैगमेंट हूं, मैं शरीर नहीं हूं। क्या लिखा? ट्राई करते हैं लेकिन वापस आ जाए। कोई बात नहीं, अभी पहले वेबिनार हो जाए, फिर अपन क्वेश्चन आंसर बात करेंगे। अगर इतना क्लियर है तो अपने अपने टॉपिक पे आते हैं कि स्ट्रेस पे कैसे कंट्रोल करना है। क्लियर? राइट, सी इन द चैट बॉक्स। कम ऑन डियर। यस, क्लियर, ओके। नाउ वी विल, स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। अपना जो माइंड है अपने को एक तरफ दिखाता है, सिक्के का एक पहलू दिखाता है। अगर आपने कार खरीदी है तो आपको दिखाएगा कि कार लेने में कितनी खुशी है, पर वही महंगी कार जो 50 लाख रुपए की है, उसका कल एक स्क्रैच लग जाता है तो हम दुख हो जाते हैं। उपास रखते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी दिखाता है, पर जैसे ही पर दिन भर भूख में हम तड़पते रहते हैं, और भूख का आगमन होता है, रात आती है तो रात की चीजें दिखाता है, पर दिन भी आएगा ये वो बताता नहीं है। तो चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा जो है एक तरफ ही दिखता है, दूसरा नहीं दिखता।
ये माइंड की फितरत है कि वो स्थिर नहीं रहता, वो आपको लाइफ का एक पार्ट दिखा। तो लाइफ में कोई दुख है, सुख आएगा तो दुख भी आए, दुख आएगा तो सुख भी आए, रात आएगी तो दिन भी आए। ये चीज समझिए, क्योंकि माइंड पे जो बिलीव करते हैं, जो लोग अपने माइंड से चलते हैं, अपने मन पे, मन को हावी कर लेते हैं, उन्हीं को ये प्रॉब्लम, स्ट्रेस वगैरह होती है। इसलिए स्ट्रेस एट वर्क है। क्यों? क्योंकि लोग ने यही सुना है, वो काम करो जिसमें आपका पैशन। तो मैं कहता हूं कि जो काम करो उसमें पैशन। यही प्रॉब्लम है, जब आदमी नौकरी करता है, पैसे वहां से लेता है, वो सोचता है कि यहां तो चलने दो, अगली नौकरी मिलेगी वहां अच्छे से करूंगा, क्योंकि ये मेरे मतलब की नौकरी नहीं है। तो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, परेशान रहता है। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो घर आता है, बच्चों की बातें नहीं सुनता है, स्पाउस से इरिटेशन से बात करता है, अपने रिश्ते भी खराब करता है। बच्चे हैं जो एक मस्ताने होते हैं, और हम लोग स्पेगल होते हैं, मस्ताने होते हैं। उनको हम लोग डांट डपट, बस आ गई, होमवर्क कर ले, उनको जो है हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग भी स्ट्रेस में स्कूल जाते हैं। नटशेल, वर्क में भी स्ट्रेस है, होम में भी स्ट्रेस है, रिलेशन में भी स्ट्रेस पैदा कर दिया आपने, तो स्कूल में भी स्ट्रेस पैदा। तो दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि इस स्ट्रेस का माइंड पे एंजाइटी के रूप में 37% इंक्रीज हुआ है, एडिक्शन में 17% इंक्रीज हुआ, और एंगर में 12% इंक्रीज हुआ। माइंड भी क्या है, दो तरह का होता है। एक कॉशियस माइंड, जिससे आप और मैं बात करते हैं, जो तर्क वितर्क करता है। एक माइंड होता है सब कॉशियस माइंड, जिसकी पावर 95% होती है, पर वो तर्क वितर्क नहीं करता, वो हर चीज को अंदर लेता जाता है, हर चीज को अंदर लेता जाता है। आपकी स्ट्रेस ठीक क्यों नहीं होती? एक कहानी से समझाता। एक महल है, महल में राजा 15 दिन में आता है, गेट पे आके ऊधम मचाता है, तो गोलियां गोलियां चलाता है, तो बात करो, गोलियां चलाता है, तो फिर अंदर चला जाता है। लोग आते हैं, लोग आते हैं, और चौकीदार को गाली गलौज करके समझा के चले जाते हैं, और चौकीदार फिर आंखें मुंह के सो जाता है। परेशानी खत्म नहीं होती। परेशानी जब तक खत्म नहीं होगी, जब वो लोग चौकीदार की मदद से राजा से मिलेंगे और उसको समझाएंगे, जब भी जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। ये चौकीदार क्या है? कॉशियस माइंड। हम लोग क्या करते हैं? शराब, नशा, ये साइकोलॉजिकल दवाइयां, सब कॉशियस माइंड को डेड कर देती है। मतलब स्ट्रेस है, डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई लिख दी, आपका कॉशियस माइंड थोड़े टाइम के लिए डेड हो गया। आपने शराब पी ली, ड्रग्स कर ली, सिगरेट पी ली, पिक्चर देख ली, एंटरटेनमेंट कर लिया, कॉशियस माइंड डेड हो गया। मतलब चौकीदार को समझाया, चौकीदार दूसरे दिन फिर उठ के बैठ गया, उसने कोई सब कॉशियस माइंड में बात ही नहीं हुई। ये चीजें, बीमारी कब दूर होगी? जब आप अपने सब कॉशियस माइंड पे वर्क करें, जिसकी ताकत 95% है, 95%। तो उसको करने के लिए आपकी बुद्धि विकसित होनी चाहिए, और बुद्धि को विकसित करने के लिए नॉलेज की जरूरत है। उसी पे आज चर्चा हो रही। तो दोस्तों,
अब हम बात करते हैं, मैं आपको, स्ट्रेस तो देखो लाइफ में होनी है, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि प्रॉब्लम फ्री लाइफ है, तो वास्तविकता यही है कि आप आए, शमशान घाट जाएं, वहीं प्रॉब्लम फ्री लाइफ। मरने के बाद ही प्रॉब्लम्स खत्म होती है। तो ये बात तो निश्चित हो गई कि स्ट्रेस लाइफ में रहेगी। उसको मैनेज करने का मैं आपको डाउनवर्ड स्पाइरल मॉडल देने जा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। स्पाइरल मतलब क्या होता है? देखिए, ये है स्पाइरल। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो नीचे से ऊपर जाते हैं, और जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है स्पाइरल मॉडल में स्ट्रेस। पहली स्टेप होती है अनप्रिडिक्टेबल। कई बार कुछ ऐसा समाचार मिल जाता है जो कि हमें उम्मीद नहीं होती, जैसे ट्रेन कैंसिल हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, भूकंप आ गया, लॉकडाउन लग गया, किसी रिश्तेदार की एक्सीडेंट हो गया। अगर हम उस बात को सुन के उसी टाइम माइंड में उसका सॉल्यूशन सुन ढूंढ लें कि चलो कोई बात नहीं, फ्लाइट जो है, जैसे मैं वैष्णो देवी गया था, फ्लाइट से मैं लौट के जब आया जम्मू से, तो कनेक्टिंग फ्लाइट मेरी ग्वालियर की थी, एयर इंडिया की, और टाइम पीरियड ले कम था। तो हम जैसे उतरे तुरंत भागना शुरू किया। तो पहुंचे तो उन्होंने कहा, साहब कि एयर इंडिया की फ्लाइट जिसमें आपके ये टिकट्स है वो कैंसिल होगी। तो अब या तो ये था कि उनसे लड़ते झगड़ते, पैसे तो देखो वापस मिल जाएंगे, ईमेल करेंगे। तो हमने बिना टाइम वेस्ट किए शाम को 8 बजे करीब वहां से वो गाड़ी पकड़ी, अपने भतीजे को ग्वालियर में फोन किया कि तुरंत तू जो भी गाड़ी मिल रही है, राजधानी वगैरह जो भी मिल रही है, उस पर टिकट करा। वैसे फ्लाइट से हम शाम को 8 बजे आ जाते। तो हमने तुरंत डिसीजन लेकर राजधानी एक्सप्रेस पकड़कर रात को 2:30 बजे करीब हम अपने घर आए। तो कहने का, अब वो एकदम अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस थी, थोड़ी सी स्ट्रेस हुई, तो हमने उसको बढ़ावा ना देते हुए कि हम उनसे लड़ते झगड़ते, आपस में डिस्कस करते, एयर इंडिया ऐसी है, एयर इंडिया तो अक्सर ऐसे करती रहती है, इसका तो काम ही ऐसा है, इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए। तो धीरे 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 हमारा माइंड जब 20 से 21 बार उस चीज को रिपीट करता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। वो फिर उस दिन रात को हम घर नहीं पहुंच सकते, रात को होटल ही लेना पड़ता, पैसे भी देने पड़ते हैं, तो दूसरे दिन 12-11 बजे तक हम लोग आते, मरीज भी हमारी ओपीडी भी जो है मिस होती है। तो स्ट्रेस स्टेप 1 क्या है? अनप्रिडिक्टेबल। इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? इसको बढ़ाओ नहीं। रिश्तेदार की अगर एक्सीडेंट हो गया तो सोच लो कि भाई जाना है कि नहीं जाना। जाना है तो तुरंत जो है फैसला कर लें कि 4 दिन बाद मैं दिल्ली जा रहा हूं काम से, देखता हुआ आ जाऊंगा। स्पाउस से डिस्कस ना करें, एम्प्लॉय से डिस्कस ना करें, बच्चों से डिस्कस ना करें, अपने एम्प्लॉय से डिस्कस नहीं, बात को बढ़ाएं ना। ये है स्टेप 1। ये स्ट्रेस ठीक है, ये नॉर्मल है। थोड़ी स्ट्रेस नहीं होगी तो आप मोटिवेट कैसे हो? एग्जाम्स आते हैं, थोड़ी स्ट्रेस होती है, फटाफट फटाफट दिमाग में जाता है, कुछ नहीं दिखता। सेकंड है, सेकंड जो स्टेप होती है उसमें क्या होता है, वो भी बेस्ट है। क्यों? उसमें क्या कर दिया, सामने में एकदम एकदम आपके सामने शेर आ गया, आप क्या करोगे? आपकी बॉडी के अंदर कुछ कैसे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो आपको भागने में मजबूर कर देते हैं, आपको समर्पण करने में मजबूर कर देते हैं, और आपको क्विट करने की भैया जो होगा देखी जाए। ये स्टेप 2 भी जो है गुड है, क्योंकि इसमें बॉडी खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेती है एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड द्वारा। यहां तक तो स्ट्रेस ठीक है, पर इसके आगे बड़ी दिक्कत है। जैसे ही आपने कोई विचार आया, अरे यार, जैसे फॉर एग्जांपल
कई बार ऐसा होता है, मैंने यार कई आगे लोग बता जाते हैं कि डॉक्टर साहब वो डांस करते करते उसकी डेथ हो गई, उसकी उम्र आपके बराबर थी। अब अगर दिमाग चल गया, अरे यार मैं भी इस उम्र का हूं, मेरा वेट भी थोड़ा ओवर वेट है, मैं भी वर्क वर्क अल्कोहलिक हूँ, काम करता रहता हूँ, मेरे साथ तो कहीं ऐसा नहीं होगा, मैं क्या करूं। बस अब मैं शुरू हुआ, तो जो मेरा विचार था वो एनर्जी पकड़ने लगा। एक ही बात को मैंने बार 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 एनर्जी दे दी, उसको जैसे ही मैंने एनर्जी दी तो वो क्या बन गया, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। तो वैसे ही मेरी बात करने की ट्यून हो जाएगी डिप्रेसिव, वैसे ही मेरा एक्शन हो जाएगा, और मैं वैसे ही जो है फियर से फियर में चला जाऊंगा, डर लगने लग जाएगा। जैसे ही डर लगेगा तो मुझे एंग्जाइटी होगी, एंग्जाइटी के बाद एंग्जाइटी होगी तो गुस्सा आएगा, और मैं आगे का उदास हो जाऊंगा। ये स्टेप 3 ठीक नहीं है, ये बैड है। यहां आपको काउंसलिंग की भी जरूरत है और डॉक्टर की भी जरूरत है। यहां भी अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो बॉडी के अंदर स्टीरॉइड और एड्रिनलिन जैसे हार्मोन्स काफी रिलीज होते हैं, वो पूरी बॉडी लस्त पस्त हो जाती है। जैसे मोबाइल की बैटरी, कंप्यूटर की बैटरी पावर सेविंग मोड में चली जाती है, ऐसे ही आदमी पावर सेविंग मोड में चला जाता है। वो यही कहता है ठीक है यार, अपने से नहीं होता, अपन तो रिटायर हो गए, बच्चे संभाले, मेरे बुते का नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, टांगों से चला नहीं जाता, घुटने बेकार हो गए हैं, बस अब तो भगवान उठा ले। तो ऐसी पागलों वाली बातें करता। यहां भी दवाई की जरूरत है और काउंसलिंग की जरूरत है। अब आती है स्टेज 5, इसमें तो भाई बाढ़ आ जाती है, स्टीरॉइड की और एड्रेनलिन, मतलब ये रिलीज होते हैं रावण रूपी ब्रेन से। फिर यहां आदमी आ जाता है, डॉक्टर साहब यहां दर्द है, डॉक्टर साहब यहां दर्द है, थायराइड हो जाता है आदमी को, इम्यूनिटी कम हो जाती है, सारी बीमारियां वो पकड़ लेता है, तो अंत में वेंटिलेटर के सहारे ऊपर पहुंच। यहां भी उसको दवाई की और काउंसलिंग की जरूरत है। अगर यहां भी कंट्रोल नहीं किया, क्रोनिक फटीग, अरे ये मुझसे नहीं होगा यार, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बुते का नहीं है। दोस्तों, स्टेज 1 और स्टेज 2 गुड है, बाकी स्टेजेस बैड है। अब इन स्ट्रेस से बचने के लिए, स्ट्रेस क्यों होती है ज्यादातर, मैं आपको समझाता हूं। पुराने जमाने में कम इवेंट्स हुआ करते थे, तो लोग घर जाना, खेती करना, भोजन पाना, दाल रोटी सब्जी साधारण, ज्यादा इवेंट्स नहीं, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं, ज्यादा परेशानियां नहीं होती थी। पर आज एक दिन में कई इवेंट्स हम लोग रखते हैं, कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल के जरिए, पूरे जो है वर्ल्ड से कनेक्टेड है। बॉडी में तरह तरह के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस बढ़ रही है। और एक कहानी से समझाता हूं, एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि जितनी भी बाहर की चीजें हैं उन्हीं से हमको स्ट्रेस होता है। जैसे मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं, मंकी कहानी नहीं, क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक मंकी, बंदर को पकड़ा गया और पिंजरे में उसको डाल दिया। वो हफ्ते भर तक उसको खाना नहीं दिया। वो हफ्ते भर बाद उसका स्ट्रेस लेवल देखा, समझ लो उसका स्ट्रेस लेवल 50। एक मंकी और लिया, उसको भी एक हफ्ते तक कुछ खाने को नहीं दिया। तो उसके सामने एक ऐसा मंकी बांधा जिसको सब कुछ खाने को मिल रहा, तो ये मंकी उसको देख रहा,
इसका स्ट्रेस लेवल 500 निकला। तो इससे ये प्रूफ होता है कि आदमी अपने आप से दुखी नहीं है, दूसरी के खुशी से दुखी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर से ही है। स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपके दोस्त ने बड़ी कोठी बना ली, उससे आपको स्ट्रेस है। आपके डॉक्टर ने आपने किया ऑटोमेटिकली, उसने ऑर्डर ले ली, उससे आपको स्ट्रेस है। पर बाहर का कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं दुनिया के चीजों को, दुनिया को ठीक कर सकूं। पर परमात्मा ने एक अंदर हमारे ऐसा सिस्टम दिया है जिससे बाहर कुछ भी होता रहता है। बाहर परमात्मा ने फ्लाइट मोड पर डाल दिया। बाहर परमात्मा ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया है। तो अंदर हमारे एक डिवाइन एंडोक्राइनल म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा दिया है, जिसकी वजह से हम बाहर कुछ भी हो, हमारे अंदर की परिस्थिति नहीं बदलती। ऑर्केस्ट्रा क्या है, मेरी तरफ देखिए, ये है पीनियल ग्लैंड, इसके पीछे है प्यूटिटरी, ये है थायराइड, ये है पैराथायराइड, ये है पेनक्रियास, पेनक्रियास के नीचे एड्रेलिन, एड्रेलिन के नीचे गोनेट्स, लेडीज में टेस्टिस और जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन। जब ये सिस्टम अपनी सिंक्रोनाइज रहता है, एक सिस्टम से बज रहा होता है, केमिकल रिलीज कर रहा होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर से लविंग म्यूजिक निकलता है। जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे अंदर नॉइज निकलता है, शोर निकलता है, परेशानी निकलती है। दोस्तों, ये अंदर का जो डिवाइन ऑर्केस्ट्रा है, तो अब एक जो इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर इनटू रेजिस्टेंस। प्रेशर सारा बाहर से आ रहा, उसने कर दिया ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, उसके बच्चे ने मेरे बच्चे का बॉक्स निकाल लिया, उसने मेरे से पैसे उधार लेके मुझे नहीं दिए, कल का बोला था आज नहीं दिए, बहू ने ऐसा कर दिया, सास ने ऐसा कर दिया। ये सारा प्रेशर बाहर से आ रहा। अगर इस प्रेशर का रेजिस्टेंस गुणा करने का 0 कर दें हम, तो स्ट्रेस 0 हो जाएगी कि नहीं। और रेजिस्टेंस के अंदर से भाई, आदमी जवान, आदमी बच्चा होता है तो खुश होता है, बचपन को पकड़ना चाहता है, जवान होता है तो जवानी को पकड़ना चाहता है, बूढ़ा होता है तो बुढ़ापे को पकड़ना चाहता है कि मौत ना आ जाए। अरे भाई, परिस्थितियों को आप नहीं पकड़ सकते, परिस्थितियों के हिसाब से ही आपको चलना हो। ये सारे शास्त्र कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, ना आप सांस ले रहे हैं, ना आप हार्ट चला रहे हैं, ना आप हवा चला रहे हैं, ना आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। ये सब अपने आप चल रहा, आपको सिर्फ फ्लो करना है। पर आपकी आदत क्या है, फ्लो के खिलाफ चलना। एक हंसी की कहानी सुनाता। एक झरने पर बह रही थी झरना, किसी की वाइफ ने सुसाइड कर लिया, डूब गई, मतलब गिर गई। उस लोग दूर, बहुत दूर रहे, ढूंढ रहे कि भाई उधर आगे बह गई होगी, आगे बह गई होगी, आगे बह गई होगी, आगे बह गई होगी। फ्लो के साथ लोग आगे ढूंढ रहे। थोड़ी देर बाद उसका पति आया। पति ने कहा क्यों, मिली? उसने कहा नहीं मिली साहब, उसकी तो लाश भी नहीं मिली, और दूर दूर कई किलोमीटर तक आगे चले गए हम, वो दिखी नहीं। उसने कहा अरे मूर्खों, झरने के आगे मत देखो, झरने के पीछे देखो, क्योंकि उसकी आदत उल्टा चलने की है, तो उसको उधर देखो, वहां मिलेगी। तो ज्यादातर लोगों की आदत फ्लो के खिलाफ चलने,
फ्लो में चलने की नहीं है। तो जो पिक्चर हॉल में मैं चाहे कुछ भी सोच लूं, मैं उसमें चेंज नहीं कर सकता। ऐसे ही पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स अपने आप चल रहा है, एक सिस्टम से चल रहा है जिसको नेचर लॉ बोलते हैं। तो वही उसी से चल रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते सिर्फ परेशानी के अलावा, बीमारी के अलावा। तो अगर आपने अंदर की स्थिति को नहीं बिगड़ने दिया तो आपकी स्ट्रेस जीरो हो जाएगी। इतना समझ में आ गया है तो गिव मी द परमिशन टू प्रोसीड फॉरवर्ड। राइट इन द चैट बॉक्स। समराइज नहीं वो कहानी हो, क्या फायदा हो। यस, अगर इतना समझ में आ गया है, गिव मी द परमिशन टू प्रोसीड फॉरवर्ड। यस ये चलो। देखिए, ये सब करना, बोलना तो आसान है। तो मॉलिक्यूलर बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, एनर्जी है, बुद्धि है। हम क्योंकि डॉक्टर हैं तो हर चीज को समराइज करने के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि आपको लाइफ में क्या क्या करना है। ऑटोमेटिकली आपके अंदर की स्थिति नहीं बदलेगी। क्या करना है समझिए। बी ईगोलेस। आपको ईगो नहीं रखनी है। आपके जो विचार हैं ईगो सेंट्रिक ना होकर सोल सेंट्रिक। आपको ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर जो डिवाइन फ्रैगमेंट है, जैसे ये इस बॉटल के अंदर हवा भरी है। इस बॉटल को अगर हम काटेंगे तो हवा हवा में मिल जाएगी। कि हवा क्या है? स्पेस। पहले क्या हुआ? इस ब्रह्मांड में हवा, स्पेस आया, जगह आई। आज ये घर है, पहले और कोई घर था। आज मैं अस्पताल चला रहा हूं, पहले होता पाटोर हो, अब और कोई चलाएगा। तो पहले स्पेस आया, स्पेस बन गया तो थोड़ी एयर आई। एयर आई, उसके बाद क्या है कि वो वाटर वाटर आया, पानी आया। फिर अर्थ आई, अर्थ के बाद फायर आई। ऐसे जैसे अपन देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, स्पर्म ओवम से मिलता है, शरीर बनता है। 3 महीने तक उसमें जान नहीं होती, इसलिए मेडिको लीगल एबॉर्शन लीगल है। 3 महीने तक एबॉर्शन करा सकते हैं। 3 महीने बाद एबॉर्शन इलीगल है। क्यों? क्योंकि उसमें कहते हैं जान आ जाती है, एम्ब्रियो से जान आ जाती है, क्योंकि स्पेस आ जाती है, जगह आ जाती है, मतलब शिव आ जाता है, कुछ शिव शिव आ जाता है। फिर जैसे ही बच्चा 9 महीने बाद बाहर निकलता है तो उसको उल्टा करके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, तो एयर लेता है, एयर फ्रेगमेंट आ जाता है। फिर वो माँ का दूध पीता है तो वाटर आ जाता है। फिर वो 6 महीने में वीनिंग करने लग जाता है, तो उसमें अर्थ आया था, उसका वजन बढ़ने लग जाता है। और 6 महीने में उसमें सोशल सेंस भी आ जाता है, और खिलौना उससे अगर छीन लो तो गुस्सा भी करता है, फायर भी आ जाता है। ये चीज अगर आपके समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम भी डिवाइन फ्रेगमेंट हैं। हम भी इस समुद्र में एक लहर है, हम समुद्र नहीं है। एक दिन लहर को समुद्र में मिलना ही है। यही सब में है। जैसे करंट से ही, इलेक्ट्रिसिटी से ही लैपटॉप चल रहा है, बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, पर इलेक्ट्रिसिटी एक है। फिर आपके अंदर से ये जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन हट जाएगा, तो आप ईगोलेस से डिवाइन सोल से, सोल को फ्रेगमेंट बन जाए। क्या है? शेल पास। दिन आया है तो रात है, रात है तो दिन है।
एक राजा ने कहा कि मुझे एक ऐसी चीज दो कि मैं कभी भी दुखी ना हो। एक बच्ची ने उनको अंगूठी बना के दी। जब राजा दुखी था तो राजा ने अंगूठी देखी, उस पर लिखा था ये टाइम भी राजन गुजर जाएगा। राजा मुस्कुरा दिया। हर टाइम गुजर जाता है, शेल पास। डोंट बिलीव इन फॉल्स सपोर्ट। कर क्या रहे हैं? कौरव बने पड़े हैं। कोई प्रतिज्ञा से पकड़ा पड़ा है अपने आप को, कोई पुत्र मोह में पड़ा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, कोई तिजोरी से लगा है, कोई रिश्तेदारों में ही डूबा है, कोई दिखावे में ही डूबा है। कहानी से समझाता हूं। राजा शिकार खेल के आया। रात को 12 बजे का टाइम था। एक बॉडीगार्ड जो दरबान था बाहर खड़ा था, ठंड से ठिठुरा रहा था, कप रहा था। तो राजन को की निगाह उस पर गई, तरस आया और बोला कि मैं अंदर जाता हूं, तेरे लिए कंबल भेजता हूं। राजा अंदर गया। खाने का टाइम था, खाना में लग गया, भोग विलास में लग गया, भूल गया। सुबह 5 बजे खबर आई कि वो दरबान मर गया। राजा भड़बड़ाया, भाग के गया। जमीन पे लाश पड़ी थी। एक मिट्टी की ढेरी पे लिखा था, राजन 60 साल से तेरी सेवा कर रहा, कभी ठंड नहीं लगी। और कल जब तूने मुझे आश्वासन दिया कि मैं कंबल भेज रहा हूं, तो मैं उस कंबल के इंतजार में ठंड लगती रही। वो कंबल नहीं आया और मैं मर रहा। मित्रों, ये सब कौरव इसीलिए मरे कि वो फॉल्स सपोर्ट में चल रहे। पांडव कोई दूध के धुले नहीं थे और उन्हें सच्चाई मतलब श्री कृष्ण को पकड़ा, जीत उनकी हुई। मित्रों, आप भी अपना ये फॉल्स सपोर्ट हटाएं, इससे मन हटाएं और परमात्मा डिवाइन फ्रेगमेंट में एनर्जी को कनेक्ट करें, जिससे कि आपकी एनर्जी का लेवल हाई रहे। आप इम्यूनिटी बूस्टर बन के हर बीमारी से, एंजाइटी से दूर रहें। यही शास्त्रों में लिखा है। सफरिंग्स का जब आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आदमी चेंज नहीं करना चाहता कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अरे भाई, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उन पे नहीं, ये मान के चलिए कि ये दुनिया बेवकूफ है, भेड़ चाल है। अगर आपको इस अध्यात्म के रास्ते पे चलना है तो अकेले ही चलना पड़ेगा। जैसे समुद्र मंथन में पहले जहर निकलता है, ऐसे ही लोग आपको धिक्कारेंगे, लोग आपको बुरा बनाएंगे। ये जहर अगर आप पीने की क्षमता रखते हैं, फिर प्रलोभन आएंगे। उसके बाद आपको कुंभ दिखेगा जिसमें कि अमृत पड़ा हो। अगर वो अमृत आपने पी लिया तो आप ये फियर और फेथ के बिजनेस से अलग हो जाए। आप रोज रोज की मौत से बचेंगे। अभी क्या हो रहा? बच्चे को नई नौकरी में जाना है, आइए माता के दर्शन करा के भेजते। डर लग रहा है, फियर है। वहां गए, एक मोटिवेशन मिल गया, झूठा सहारा मिल गया। हम लोगों ने तो मरने के बाद भी अपने सहारे ढूंढ लिए। अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, गलत कर्म करो तो नरक मिलेगा। दोस्तों, ये रोग सबसे बुरा है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे बचना पड़ेगा। कई बार समस्याएं बड़ी छोटी होती हैं, हम उनको बड़ी बना लेते हैं, अपने दिमाग में एक शेर बना लेते हैं। कुछ जरा सी प्रॉब्लम आ गई, घर में छींक आ गई, गले में दर्द हो गया, और परिवार में किसी कोई आदमी कैंसर से मरा है, तो हम कैंसर तक पहुंच जाते हैं। एक कहानी से समझाता हूं, समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती। एक राजा को उत्तराधिकारी की जरूरत थी।
राजा ने डोंडी पिटवा दी कि जो इस ताले को खोलेगा और इस कमरे में जाएगा उसी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। और दरवाजे पे कुछ इक्वेशंस बना, लोग आए, जरा तरह तरह के लोग आए, कोई नहीं खोल पाया। एक बच्चा आया, उसने आंखें बंद की, दरवाजे को धक्का लगाया तो दरवाजा खुल गया और वो राजा बन गया, क्योंकि दरवाजे में ताला लगा ही नहीं था। तो मित्रों, कई बार हम अपने को एंग्जाइटी, फियर, डाउट, डिप्रेशन, इन सब चीजों में डाल देते हैं, जबकि समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। तो दोस्तों, यही आखिरी में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक स्ट्रेस की वैक्सीन दूं। वैक्सीन क्या है मैं बताता हूं। एक राजा, सीन दो, पेंटिंग पेंटिंग कमरा है पेंटिंग हो गई, समरी नहीं, पेंटिंग नहीं मिल सकती होगी। एक बार एक राजा, जिसकी एक आंख नहीं थी और एक टांग नहीं थी, वो अपनी लॉबी में घूम रहा था। उस लॉबी में उसने देखा बड़े बड़े उसके जो बुजुर्ग थे, बड़े बड़े जो उसके बुजुर्ग थे, उन सब की फोटोएं लगी हुई थी और वो शूरवीर दिख रहे थे। आखिरी में जब पहुंचा तो राजा जो है उदास हो गया। उदास होके उसने क्या किया, मन उदास हो गया और सोचने लगा कि ये फ्रेम मेरे लिए रखी गई, पर मेरी एक आंख कम, एक टांग नहीं, मेरी जब फोटो इसमें लगेगी तो मैं कैसे लगूं। उसको बुरा लगने लगा। उसने डोंडी पिटवा दी कि जो मेरा ऐसा चित्र बनाएगा जिसको देख के मैं खुश हो जाऊंगा, उसको मैं माला माल करूं। लोग बड़े परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए। तो आखिरी में एक किसान की बिटिया ने वायदा किया कि 15 दिन में मैं वो चित्र ऐसा बना दूंगी कि राजा खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, 15 दिन का समय आ गया। उसने पेंटिंग स्टेज पे लगाई, राजा आया। राजा ने जैसे ही पेंटिंग से ऊपर अपना, पेंटिंग से ऊपर जैसे पर्दा हटाया, राजा कूद पड़ा, हंस पड़ा और लड़की को धन्यवाद करने लगा, नाचने लगा, गाने लगा और वो माला माल उसको कर दिया। पेंटिंग क्या बनाई थी, पेंटिंग अभी मेरे को मिल नहीं रही है। उसने क्या किया कि राजा का चित्र ऐसा बनाया कि जो टांग उसकी टूटी थी उसको दूसरी तरफ कर दिया घोड़े के, और एक आंख बंद कर दी जो इधर की फूटी थी, और तीर कमान उससे हाथ में पकड़ा दिया, जिससे कि राजा शूरवीर नजर आने लगा। दोस्तों, इस वैक्सीन का सिर्फ मतलब यह है कि अपना देखने का नजरिया बदलो, चैलेंजेस में भी अपॉर्चुनिटीज देख। जब आप ये देखना शुरू कर देंगे तो मित्रों, आप विश्वास करें कि आपकी हर पल स्वर्गमयी हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों को ये वेबिनार में कुछ कमियां या कुछ अच्छी बातें लगी हों तो उनको ग्रुप में डालें, शेयर करें, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। कुछ 499 में हमारे कोर्सेज वगैरह भी वेबसाइट पे हैं, उनको भी आप चाहें तो स्कैन करके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, एक आध क्वेश्चन ले सकते सर एक गुरु मंत्र दीजिए स्ट्रेस के लिए। हैं। इसके लिए एक गुरु मंत्र सर स्ट्रेस के लिए सबसे स्ट्रेस इम्पोर्टेंट। के माइंड को एंगेज करके रखिए, ओके। माइंड को एंगेज करिए, क्योंकि क्या है कि माइंड की फितरत है कहीं ना कहीं एंगेज रखना, फ्री नहीं बैठ सकता। तो बेटर बेटर यही है कि मॉर्निंग में उठें तो कुछ गाना या कुछ भजन राइट या सर। कोई स्पिरिचुअल सुनें, ये भक्ति योग कहलाता है। कुछ मंत्र है, मंत्र का जाप करें, उससे एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच हो, उसमें आप देखिए, अगर पल्स आपकी 90 है तो आप जब भी
मंत्र का जाप करेंगे तो वो 72 हो जाएगी, करके देख लीजिए। ये भक्ति योग कहलाता है। फिर तैयार जब होके, वेबिनार स्टार्ट हुआ था तो एक अच्छा म्यूजिक था, वो भी सर एक अच्छा स्ट्रेस रिलीफ करता है जो हाँ आपका वो स्टार्ट। करता है, जो वो अंदर हाँ, वेव्स रहती है ना पूरी, तो आपकी राइट सर। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फिर काम में जब आप लगते हैं तो वो क्या है कि कर्म योग कहलाता है। फुल पैशन के राइट साथ सर। काम को करिए। फिर शाम को कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए। ये ज्ञान योग कहलाता है। जब आपके तीनों योग संपूर्ण रूप से चलते रहते हैं तो आपके अंदर प्रेम योग अपने आप आ जाता है। आपको सबके प्रति, सब परमात्मा की चीजों के बनों के प्रति एक प्रेम आ जाता है। आप प्रेम प्रेम रूपी बन जाते हैं, काम और पीस हो जाते हैं। और रात को नींद अच्छी आती है। राइट। और रात को नींद अच्छी आई तो आप प्योर कॉन्शियसनेस डिवाइन फ्रेगमेंट से मिल लेते हैं, और फिर सुबह फ्रेश होके फिर रूटीन बनाते हैं। तो अपने आप को एंगेज रखिए, बिना, क्योंकि अगर उधर ध्यान नहीं जाएगा तो और कहीं जाएगा। तो बेटर ये है कि हायर एनर्जी पे ही ध्यान रखना जरूरी होता है। नेगेटिव एनर्जीज पे ध्यान, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता नहीं है, पर फिर भी आप लोग जानते हैं हायर और लोअर एनर्जीज रहती हैं। अगर आपकी एनर्जी हाई है तो कोई खींचेगा, जब तो नमस्कार करते हैं हम लोग, हाथ नहीं मिलाते कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में हम लोग क्यों ना चला जाए। आजकल तो एप्पल में ऐप भी आ गया है, ऑरा ऐप। वो आप उससे अगर आपने फोटो खींचेंगे तो आपको अपने चारों तरफ एक ऑरा नजर आएगा, देख सकते हैं। ये तो प्रूफ चीजें हैं। तो अपने माइंड को एंगेज रखें, किसके साथ? हायर एनर्जीज के साथ, लो एनर्जीज के साथ नहीं। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन लो एनर्जीज की आप लोगे, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज है, ये सब नेगेटिव एनर्जीज हो। राइट सर। क्या है कि आपको जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उसी से आपका थॉट प्रोसेस बनता है, उसी से आपका इमोशन बनता है, उसी से आपकी इंटेंशन आती है, उसी से आपका फीलिंग आता है, उसी से आपका एक्शन। तो अपनी इंफॉर्मेशंस पे ध्यान दें, क्या इंफॉर्मेशंस आप ले रहे हैं। हैंड रेज कर। हाँ मैडम बोलिए। हाँ मैडम जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने हाँ माइक को। सर। हाँ हाँ मैडम। सर आपने बोला कि उसमें आपका माइंड एक करिए, लेकिन रात को नींद खुल जाती तो एक ही सोच आया करती है, थिंकिंग थिंकिंग ही करती रहती है, तो फिर नींद ही नहीं आती मेरे को। नहीं देखिए, तो क्या? नींद आना तो बहुत जरूरी है। क्या बीच में खुल जाती है आपकी नींद? हाँ, दो तीन तीन घंटे ही मेरे को पूरी नाइट में नींद आती है, फिर नींद खुल जाती है तो जो कुछ हुआ है ना वही याद ही आते रहते हैं, याद ही आते रहते हैं, तो नहीं तो सोचती रहती हूँ मैं। नहीं तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि दिन में सोते हैं क्या आप? नहीं, दिन में भी नहीं सोती, बिल्कुल बेड में ही नहीं जाती नींद, दिन में भी देखिए तो भी नींद, रात को नींद नहीं आती। नहीं तो बेटर ये है, देखिए नींद आना जरूरी है, पर नींद के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है कि नींद लाने की कोशिश ना करें अपन। अपना आराम से बिस्तर पे लेट जाएं, गहरी गहरी सांस लें या महामृत्युंजय का जाप मन में करें। तो आप देखेंगे कि कब आप सो गए आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि ध्यान क्या है, वहीं लग जाता है ना। तो जब आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको कोई भी मंत्र अगर याद हो, सांसों में कर सकती हैं आप, ओके। ओम का जाप कर सकते हैं। ये देखने में आया है कि जो लोग 3 स्टेप ब्रीदिंग लेते हैं, मतलब एक बार इनहेलेशन, फिर थोड़ा सा पॉज, फिर एक्सहेलेशन, तो वो लोग कभी भी बूढ़े ही नहीं होते। ऐसे साधु संत भी हैं। 3 स्टेप ब्रीदिंग से आदमी यंग रहता है, ये एक सूत्र है। तो ये रात को नींद आपकी खुल जाती है, खुल जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, समझ लो ध्यान लगा लो। टाइम क्यों, घड़ी क्यों देखती हैं आप? और फिर आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपको जो है ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। इधर उधर की बातें सोचने का मौका नहीं मिलेगा ना। आपने उसमें सोचने की जगह कोई मंत्र डाल दिया या कोई जाप डाल दिया, एंगेज कर लिया। ये एंगेज करने का तरीका है अपने आप, क्योंकि जब भी आपको प्योर कॉन्शियसनेस दिखेगी, जब पर्दे में पिक्चर चल रही है तो आप पर्दा कैसे देख सकते हैं? पिक्चर बंद करने पे इंटरवेल में ही तो पर्दा दिखेगा। तो आपको क्या है कि पहले इंगेज करना पड़ेगा अपने माइंड को, जब ही आप पर्दा देख पाए। फिर भी कोई और प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए,
मैं आपको और सब बताऊंगा। थैंक यू डियर, थैंक Okay, यू, sir. थैंक यू। Okay, thank you, sir.